Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the third lesson of civics, the need of a parliament. So, you should take your SST textbook and open your page number 227 and keep it in front of you, okay, while watching the whole video. There are some words and their meanings. First word, bicameral. 1 minute, means having two chambers. Means a representative form of government composed of two legislative chambers. Okay. Then collision. Next word is a collision. A temporary alliance. You know alliance? Alliance means agreement, samjhota. Especially of political parties forming a government. And after election, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी में इलेक्ट होके नहीं आते तो वहाँ पे 2 या 3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म होती है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द कोलिजन. जैसे प्रेजेंटली अपनी महाराष्ट्र की फॉर्म हुई है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन. देन कॉन्ग्रीगेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर अ पर्पज. ओके, मीन्स दैट इज़ वन ग्रुप. जो लोग एक साथ आते हैं कुछ पर्पस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन. देन कॉन्स्टिट्यूएंसी. नेक्स्ट वर्ड इज हियर कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स अ बॉडी ऑफ वोटर्स इन अ स्पेसिफाइड area who elect a representative to a legislative body and a state divided into smaller areas फॉर इलेक्शन. ओके, इलेक्शन के लिए इन स्टेट को डिवाइड किया गया है and these smaller areas, these smaller parts are called the constituency. Got it? Then next word is here manifestation means an object that clearly shows or embodies something. means demonstration भी बोल सकते हैं इसे. okay, ordinance means an authoritative order, that is one order. Ordinance means. okay, then next word is here portfolio, the position and duties of minister. That is a position and there are some duties, there are some responsibilities of ministers. okay, that is called the portfolio. Then residuary, last word is here residuary means relating to the residue of an estate. Residue means remaining wealth. okay, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्ड है रेसिड्यूरी. गॉट इट? नाउ कम टू द लेसन. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल नाइदर डिड द पीपल हैव एनी से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट नॉर could they criticize the policies of the government. And you know how was the situation during the colonial period. okay, during the British period of ordinary people. जो भी ordinary common लोग थे इनकी situation बहुत ही पुअर थी. okay, during the British period, during the colonial rule. एंड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ पे रहती थी, जो भी गवर्नमेंट फंक्शन करता था, वर्क करता था, उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डिनरी, कोई भी कॉमन पर्सन नहीं जा सकता था. ओके, नेवरथलेस वंस इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वर कन्विंस्ड दैट पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फिर भी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ वहाँ पे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज थी, जो ग्रेट इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने ये समझा कि जो भी सिटीजन्स है इंडिया के, सभी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी है. एंड सो ऑल अडल्ट सिटीजन्स वर गिवन द राइट टू वोट. और इसीलिए सभी अडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग के राइट्स दे दिए गए. ओके, अडल्ट मीन्स मैच्योर्ड पर्सन. ओके, जनरली अबव 18 years old age. And that is a universal adult franchise means all adult has
वोटिंग पावर, ओके, सभी अडल्ट को वोटिंग के पावर्स है, एंड दिस इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर कंट्री. गॉट इट. The participation of the people is very critical for proper functioning of the democracy. And जो participation है लोगों का, that is a extreme important for proper working, for proper functioning of democracy. Okay. And what is this democracy? Means government of people, by people and for the people. Okay, that is a democracy. टू फॉर्म द पार्लियामेंट. अब ये पार्लियामेंट कैसे फॉर्म की जाती है? पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स. लोग अपने में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके देते हैं, हु टेक डिसीजन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द कंट्री ऑन देयर बिहाफ. एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इलेक्ट होके जाते हैं, ये डिसीजन लेते हैं. ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. मीन्स लोगों के जो भी ओपिनियंस होंगे उसी ओपिनियंस के आधार पे ही यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है. ओके. सिंस द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, इट हैज़ टू रन इट्स ऑफिस रिस्पॉन्सिबली. एंड अगर लोग वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को आंसर देने ही पड़ते हैं. मोर और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी, which is central to the notion of democracy. And because of these universal adult franchise, there is a political equality. आपने वोटिंग के क्यूज़ देखे होंगे. अगर वोटिंग के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे गरीब लोगों के लिए अलग लाइन और अमीर लोगों के लिए अलग लाइन ऐसे नहीं रहता. देयर इज़ अ इक्वालिटी. मीन्स गरीब पुअर पर्सन भी वहीं पे खड़ा होगा और रिच पर्सन भी वही क्यू में, वही लाइन में खड़ा होगा. दैट इज़ अ इक्वालिटी. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देयर इज़ अ पॉलिटिकल इक्वालिटी. मीन्स सभी को वोटिंग के राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. व्हाट इट. Thus, Parliament is a congregation of elected representatives. And what is the meaning of this congregation here? A group of people assembled for a purpose. And what is this Parliament? Parliament is a group of elected representatives. जो भी representatives हम यहाँ से elect करके देते हैं, वो ये जो representatives हैं, इनकी वजह से Parliament form हो रही है. Okay. It makes laws and exercise political authority on behalf of the people. And what is the function of this parliament, of these representatives? It makes the laws, exercise political authority on the behalf of the people. और ये जो भी representatives हैं, ये laws form करते हैं on the behalf of the people. लोगों के लिए यहाँ पे laws form किए जाते हैं. ओके, लोगों के साइड में. ठीक है. इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. एंड दैट पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, ओके, ऑफ आवर कंट्री. ये अपने कंट्री की एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है. ओके. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ Indian democracy. This institution is a medium for expressing the needs of the ordinary citizens, impression and expectation. पार्लियामेंट एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, जिनकी जो नीड्स है, एम्प्रेशन में समझ, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन, ये सभी चीज़ें एक्सप्रेस की जाती है. ओके. दिस पार्लियामेंट इज़ अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल दीज थिंग्स. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट और संसद इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेथ दैट इंडियंस हैव इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड द गवर्नमेंट. एंड
जो भी वैल्यूज़ है डेमोक्रेसी की, इस पे इंडियंस का विश्वास है, फेथ। ओके, फेथ मीन्स विश्वास। एंड ये जो भी फेथ है ये कहाँ पे शो हो रहा है? इंडियन पार्लियामेंट में, संसद में। एंड विच इज़ द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज़ हियर all citizen participate in decision making process in the government। ओके, और ये जो वैल्यू है, इस पे जो ट्रस्ट है, फेथ है इंडियंस का, ये हमें संसद में दिखाई देता है, पार्लियामेंट में दिखाई देता है। ओके, द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, Rajya Sabha and Lok Sabha together form the union legislature। And in parliament there is a president, parliament में president रहते हैं, and two houses, राज्य सभा एंड लोक सभा, और ये टू हाउसेस मिलके यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर फॉर्म होता है। एज पर द प्रोविजन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, in constitution there is a provision, okay, the union government exercises power over the whole country, and पूरा कंट्री चलाने के लिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, और ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड रहते हैं स्टेट के, एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड रहते हैं। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 228, द प्रेसिडेंट elected by members of Lok Sabha and Rajya Sabha along with the members of Legislative Assembly। एंड ये प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट होके आते हैं। ओके, टेन्योर इज 5 years। यू नो टेन्योर मीन्स वर्किंग पीरियड। जो भी वर्किंग पीरियड है ये 5 years का रहता है प्रेसिडेंट का, बट कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। लेकिन अगर फिर से ये इलेक्ट होके आते हैं तो फिर से 5 years के लिए ये वर्क करते हैं। सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, और ये सभी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, एड्रेसेस जॉइंट सिटिंग of parliament and can also issue ordinance when parliament is not in session। Now MCQs. First, what is the central to the notion of democracy? There are 3 options: political equality, one man rule or dictatorship, and rule of militia। A option is answer here, political equality। Okay, then second, which of the following is true about the president of India? There are 3 options: actual head of the government, nominal head of the state, both A and B। nominal head of the state, B option is answer here। Okay, now Rajya Sabha, the Rajya Sabha or upper house represents the states which have seats in proportion to their population। और सीट्स कैसे रहेंगी? प्रोपोर्शन में रहेंगी, जो भी पॉपुलेशन रहेगा उसके। इट इज़ अ परमानेंट हाउस, और ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा। However, after every 2 years, the tenure of 1/3 of its members ends। Among the members of Rajya Sabha, 1/3 members retired after 2 years। Okay, हर 2 साल के बाद यहाँ पे 1/3 members retired होते हैं राज्यसभा में। So every member has a term of 6 years। हर एक मेंबर का वर्किंग पीरियड 6 years का है। The Rajya Sabha can have up to 250 members, but the present strength is 245। राज्य सभा के members कितने रह सकते हैं? 250, but
present strength is 245, and out of this 245, 233 represent the states and union territories, and while 12 members nominated by the president are eminent personalities, और ये जो बचे 12 members है ये president nominate करते हैं representing various fields. In the absence of ex officio chairman of the house, that is the vice president, अगर vice president absent है, ex officio chairman बोलेंगे हम इसे, ओके तो वहाँ पे जो डेप्यूटी चेयरमैन है हु इज़ चूजन बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, और ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है जो राज्यसभा के मेंबर्स ने चूज़ किए हुए हैं ये प्रिसाइड्स करते हैं मीटिंग को, ओके मीटिंग की जो भी अध्यक्षता है वो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो। व्हाट इट राज्यसभा मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs. नाउ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये जो राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स है ये यहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, इनका वर्किंग पीरियड कितना है 5 years। प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन, एंड ये जो राज्यसभा है इसे प्रिसाइड्स करते हैं, मीन्स इसकी अध्यक्षता करते हैं, हेड रहते हैं मीटिंग की, ओके टेक्स ओवर एज अ प्रेसिडेंट इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इलनेस और एनी अदर रीज़न। एंड अगर प्रेसिडेंट की प्लेस वैकेंट है तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, ओके कोई भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, इलनेस और एनी अदर रीज़न। तो अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे वर्क करेंगे। व्हाट इट Then next topic is here Lok Sabha. The Lok Sabha or lower house comprises members who are directly chosen by the people based on universal adult franchise. And जो लोक सभा है यहाँ के जो members है ये directly elect होके आते हैं लोगों में से, okay? Based on universal adult franchise, and you know what is this universal adult franchise? जो वोटिंग के राइट्स दिए हुए हैं एवरी अडल्ट सिटीजन इन आवर इंडिया, ओके दैट इज़ अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड इलेक्शन के लिए पूरा कंट्री अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है, ओके ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमॉन्ग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द पार्लियामेंट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है पार्लियामेंट में, ओके एट प्रेजेंट लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स, out of which 530 members are elected from the state and 13 are elected from the union territories. And how many members in Lok Sabha? There are 545 members, and out of which 530 members are elected from the states and 13 elected from the union territories, okay the president of India can nominate 2 members, और जो 2 members है ये president nominate करते हैं from the Anglo-Indian community if he or she feels that the community is insufficiently represented. Members of Lok Sabha are elected for a period of 5 years, और ये जो लोक सभा के members है ये 5 years के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इनका वर्किंग पीरियड कितना है 5 years, एंड वर्किंग पीरियड ऑफ राज्यसभा
6 ईयर्स। ओके, राज्यसभा के जो मेंबर्स है इनका वर्किंग पीरियड 6 ईयर्स है, और लोकसभा के जो मेंबर्स है इनका वर्किंग पीरियड 5 ईयर्स है। गॉट इट? However, the president can dissolve the house before the completion of its tenure if the ruling party loses majority. And on the other hand, in times of emergency, its tenure can be extended for a year. अगर emergency है तो यहाँ पे जो tenure है, working period है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल के लिए by president. President can dissolve the house, okay, and president can extend it also for 1 year. Got it? Once the election results are declared, the parliament has to carry out the following functions. There are some functions of parliament. A, selecting the national government. Once the election results are out, the party that wins a majority of seats is invited by the president to form a government. इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी मेजॉरिटी में सीट्स आई है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी में, मीन्स जो भी पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं वो मेजॉरिटी में इलेक्ट आए हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट होके आए हैं, वो पार्टी को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. ओके, to form a government, the party should have at least a half, that is 272 members or more. and government form करने के लिए पार्टी को कितनी सीट्स की ज़रूरत है? 272 members. ओके, या उससे ज़्यादा. if no party get a clear majority, then 2 or more political parties with similar objectives can come together to form a coalition government. अगर एक ही पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मीन्स एक ही पार्टी से 272 या उसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स इलेक्ट होके नहीं आते हैं, तो यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती है. एंड इसे कौन सा गवर्नमेंट बोलेंगे हम? कोलिजन गवर्नमेंट. ओके, पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन द रूलिंग पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द अपोजिशन पार्टीज. एंड जो रूलिंग पार्टीज है, विच इज़ द रूलिंग पार्टी? जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है उसे हम रूलिंग पार्टी बोलेंगे. एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं उन्हें हम अपोजिशन बोलेंगे. ओके, गॉट इट? The executive is responsible for the implementing the laws made by the parliament. and पार्लियामेंट में जो भी लॉ फॉर्म होता है वो इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज द सिलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एंड यू नो देयर आर 3 organs ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ओके, तो लेजिस्लेचर में कौन आएंगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, एंड दिस एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज. जो भी लॉज लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं वो इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव्स की. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकसभा, लोकसभा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इज द सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन करना. द रूलिंग पार्टी चूजेज अ प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड, रियल हेड ऑफ द स्टेट. एंड जो रूलिंग पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं. एंड ये जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ये रियल हेड रहेंगे स्टेट के. ओके, यहाँ पे स्टेट किसे कहा गया है? नेशन को, कंट्री को. गॉट इट? ही और शी अपॉइंट्स मिनिस्टर्स, कोऑर्डिनेट्स the work of the various department and advises the president on important matters. and ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे एंड जो भी अलग अलग वर्क है डिपार्टमेंट का ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स. ओके, then
the prime minister, we have to study about prime minister, head of the state and council of ministers. He is the head of the state के head रहते हैं ये, and council of ministers. Okay, appointed by the president. किसने appoint किया है इन्हें? president ने. Holds office for a period of 5 years provided has majority in the parliament. And how many years working period of prime minister? 5 years. Okay. चेयरपर्सन्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो भी प्लानिंग कमीशन है इसके ये चेयरपर्सन रहते हैं. Advises president on all important matters including appointment of judges, chief election commissioners, etc. And next responsibility of the prime minister is here, allocates portfolios and coordinates the work of ministers. Means जो different categories के ministers रहते हैं उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स हु आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड जो मिनिस्टर्स रहते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज रहते हैं, इन्हें अपॉइंट करना, that is responsibility of prime minister, and implement the decision of the government. There are 3 categories of ministers, and which are these? Cabinet ministers, ministers of states, and deputy ministers. Okay, cabinet ministers, the core of the executive, hold important portfolio like defense, home, finance, foreign affairs, etc. एंड ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे डिफेंस, होम, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर्स की रहेंगी. ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आदर होल्ड एन इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो और वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स. इन्हें इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में इन्हें वर्क करना पड़ता है, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स रहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी इज हियर डेप्यूटी मिनिस्टर्स हु सपोर्ट द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स. और ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स रहते हैं इन्हें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को सपोर्ट करना पड़ता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट करना पड़ता है. The prime ministers and his councils of ministers are jointly responsible for the decision taken. जो भी डिसीजन लिया जाता है इसके लिए प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ओके, दिस इज नोन एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. द members also choose a presiding officer, speaker, who conduct out the proceeding. On next page, as well as maintain order in the house. In this absence, the deputy speaker presides over the proceedings in the house. And जो भी इवेंट्स जो भी हाउसेस में होता है, मीन्स मीटिंग्स, इवेंट्स, तो इसको प्रिसाइड करने के लिए यहाँ पे स्पीकर चूज़ किए जाते हैं. मेंबर्स स्पीकर चूज़ करते हैं. एंड हु कंडक्ट आउट द प्रोसीडिंग्स एज वेल एज मेंटेन द ऑर्डर इन द हाउस. ओके, इन हिज एब्सेंस द डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग इन द हाउस. और अगर स्पीकर एब्सेंट है तो वहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर वर्क करेंगे. ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. One of the main aspects of parliamentary democracy is that the executive is answerable to the legislature, and the government has to give an account of its policies and expenses incurred to the
पार्लियामेंट एंड जो गवर्नमेंट है ये इन्हें अपनी जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी एक्सपेंसेस है, इसका हिसाब पार्लियामेंट में देना पड़ता है. The opposition plays a crucial role in the system by eliciting essential information about the functioning of the government and highlighting flaws in the policies and programs of the government. एंड जो पार्लियामेंट है यहाँ पे जो अपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स, अपोजिशन लीडर्स जो रहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन्हें जो भी गवर्नमेंट का फंक्शन चल रहा है इसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं गवर्नमेंट से. ओके, कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए गए, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ये सभी यहाँ पे डिस्कस होता है. गॉट इट. क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर आर द टू टाइम्स ड्यूरिंग द डे. दिन में 2 टाइम्स रहते हैं, क्वेश्चन आवर्स एंड जीरो आवर्स, when relevant information can be sought from the government. And question hours is the first hour of every sitting when the ministers answers questions related to the operation of their respective department. And question hour में जो मिनिस्टर्स हैं इन्हें आंसर्स देने पड़ते हैं. जो भी उनका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे उनके वो आंसर्स यहाँ पे देते हैं. जीरो आवर्स स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स. और ये जो जीरो आवर्स है ये क्वेश्चन आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है. ड्यूरिंग दिस आवर डिस्कशन ओवर मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर हेल्ड. एंड ये जो आवर्स है, जीरो आवर्स, यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक के जो भी ओपिनियंस है इस पे डिस्कशन होता है. Thus, MPs as representatives of the people play a key role in controlling directing the government for making various policies and updating the people about the actions of the government. MPs रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में एंड डायरेक्ट करने में. ओके, डायरेक्ट मीन्स राह दिखाना. Besides, the parliament also has the power to remove presidents. एंड पार्लियामेंट को पूरे पावर दिए हुए हैं. अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट ये अपने जो भी पावर है इनका मिसयूज़ करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करते हैं तो इन्हें रिमूव करने के पूरे पावर पार्लियामेंट को यहाँ पे है. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज हियर कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस. द पार्लियामेंट मैनेजेस द फाइनेंस ऑफ द कंट्री. Every year, the finance minister presents the budget before the parliament that explains in details the intended expenses and the probable returns. And हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स रहते हैं ये बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में. यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं या जो भी रिटर्न्स आने वाले हैं ये एक्सप्लेन किया जाता है. ओके. Besides, the government tables before the parliament all proposals of new tax laws which are an important sources of earning for the government. and इसके साथ जो proposals है न्यू टैक्स laws का ये भी प्रेजेंट किया जाता है. that is the important source of earning for the government. okay, there is one table of laws. okay, but about this table we will see in the next video. got it? What we have seen in the beginning of this lesson, some words and their meanings. okay, and after this we have seen about the parliament. in parliament there is president. parliament में president होते हैं and there are two houses, राज्य सभा and लोक सभा, and together form the union legislature. means राज्य सभा and लोक सभा मिलके union legislature form करते हैं. and president is the nominal head of the state. and what is this state? state किसे कहा गया है? country. okay,
And who is the nominal head of the country, of the state? President. Okay, while prime minister is the actual head of the government, और prime minister actual head रहते हैं government के. Got it? About the parliament. Then we have seen about Rajya Sabha. How many members in Rajya Sabha? There are 250 members. The Rajya Sabha can have up to 250 members, but the present strength is 245. Out of 245, 233 represent the states and the union territories. Okay, while 12 members nominated by the president, और जो बचे 12 members है ये president nominate करते हैं. Okay, then we have seen about the Lok Sabha, lower house. राज्य सभा को अपर हाउस बोलेंगे एंड लोकसभा लोअर हाउस. ओके, and how many members in Lok Sabha? There are 545 members at present. Okay, and 545 members, out of which 530 members are elected from the states and 13 are elected from the union territories. Okay, 530 ये स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं एंड 13 यूनियन टेरिटरीज से. And the president of India can nominate 2 members from the Anglo-Indian community if he or she feels that the community is insufficiently represented. Okay. Then we have seen about the functions of parliament. Selecting the national government. We have seen about these functions in detail. Okay. And next function of parliament is here controlling, guiding and informing the government. Okay, यहाँ हाँ, next function of government is here control on government finance. यहाँ तक हमने इस वीडियो में देखा हुआ है. ओके, and next topic we will see in the next video. Okay, and today's topic is completed here. You have to read the lesson and understand it and write the meanings of the words in your notebook. जो words and meanings lesson के शुरुआत में दिए हुए हैं, you have to write these words and meanings in your notebook, in your SST notebook. Got it? Have a good day.